प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से सर्वप्रथम यहाँ उपस्थित सभी को और डिजिटल माध्यम से हमारे साथ जुड़े सभी देशवासियों को असम के ऐतिहासिक द्वीप माजुली से सादर प्रणाम और साथ ही हमारे आज के इस विशेष कार्यक्रम में सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। आज के शुभ दिन पर हमारे बीच डिजिटल माध्यम से उपस्थित है भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। हमारे बीच उपस्थित है माननीय केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग श्री नितिन गडकरी जी। हमारे बीच उपस्थित है माननीय केंद्रीय विधि और न्याय, संचार, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी। हमारे बीच उपस्थित है माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, पत्तन, पौध परिवहन और जलमार्ग श्री मनसुख मंडाविया जी। हमारे बीच उपस्थित है माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग जनरल डॉक्टर वीके सिंह जी। हमारे बीच उपस्थित है माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग श्री रामेश्वर तेली जी। हमारे बीच उपस्थित है असम के माननीय मुख्यमंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी। हमारे बीच उपस्थित है मेघालय के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर कॉनरेड के सांगमा जी। हमारे बीच उपस्थित है असम सरकार के माननीय वित्त, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और शिक्षा विभाग के मंत्री श्री हिमंत बिश्व शर्मा जी। सभी विशिष्ट अतिथियों को सादर अभिनंदन। और इस अनुष्ठान को आगे ले जाते हुए अभी मैं आग्रह करना चाहूंगी असम सरकार के वित्त, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और शिक्षा विभाग के माननीय मंत्री श्री हिमंत बिश्व जी को कि वो आए और स्वागत भाषण प्रस्तुत करें। भारतर सम्मानीय प्रधानमंत्री और एकविंश शतिकार विश्व नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डांगरिया, आमार सकलोरे श्रद्धार सम्मानीय आमार भारतवर्षर पथ परिवहन विभागर मंत्री नितिन गडकरी डांगरिया, रविशंकर प्रसाद डांगरिया, मनसुख मांडविया डांगरिया, অসমৰ সম্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া, কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়া, মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমা ডাঙৰীয়া, আজিৰ মঞ্চত উপবিষ্ট সম্মানীয় অতিথিসকল আৰু মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ মাজুলীবাসী ৰাইজ, আজিৰ দিনটো আধুনিক অসমৰ ইতিহাসৰ এক সোণালী দিন। আজিৰ এই দিনটোত অসমৰ সাংস্কৃতিক আৰু আধ্যাত্মিক কেন্দ্ৰভূমি, অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ মাজুলীক সংযোজিত কৰি যোৰহাটলৈকে এখন দলং নিৰ্মাণৰ বাবে যি প্ৰস্তুতি আছিল তাক আজি ভূমি পূজনৰ জৰিয়তে শুভাৰম্ভ কৰিবলৈ ভাৰতবৰ্ষৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে। আজি যদি মাজুলী আৰু যোৰহাটক কেন্দ্ৰ কৰি অসমৰ নৱজাগৰণৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছে, ঠিক তেনেদৰে ধুবুৰী আৰু ফুলবাৰীৰ মাজত ৩,০০০ কোটি টকা খৰচ কৰি ভাৰতবৰ্ষৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ দলংখনৰো আজিৰ দিনটোতে ভাৰতৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব। মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰক এক নতুন ৰূপেৰে সজাই তুলিবলৈ মহাবাহু নামে নদী খননৰ পৰা জেটি নিৰ্মাণলৈকে এক বিশাল প্ৰকল্পৰ জৰিয়তে মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰক এক নতুন ৰূপত সজাই তোলাৰো এক আধুনিক প্ৰচেষ্টা আজিৰ দিনটোতে আৰম্ভ হ'ব। ৰূপ এক্সৰ জৰিয়তে মাজুলী, গুৱাহাটী আৰু যোগীঘোপা ৰাইজৰ মাজত যাতায়াতৰ সুচল ব্যৱস্থাৰো আৰম্ভণি আজিৰ এই দিনটোতে আমি আৰম্ভ কৰিম। এক কথাত ক'বলৈ গ'লে আজিৰ দিনটোৱে হ'ল
আধুনিক অসমৰ শ্ৰেষ্ঠতম দিন, যিটো দিনত এই ধৰণৰ মহান কাম কৰিবলৈ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া নতুন দিল্লীৰ পৰা আমাৰ লগত সংযোজিত হৈছে। আজিৰ এই পবিত্ৰ দিনত, এই মংগলময় দিনত মই অসমবাসীৰ শ্ৰীচৰণত আকৌ এবাৰ সেৱা কৰিছো। 2016 চনত আপোনালোকে আমাক এটা সুযোগ দিছিলে অসমক নতুন ৰূপত সজাই পৰাই তোলাৰ বাবে। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াই আমাক আশীৰ্বাদ কৰিছিলে খাৰুৱা তেলৰ ৰয়েলটিৰ পৰা, বগীবিলৰ দলঙৰ পৰা, ধৰাশদিয়াৰ দলঙৰ পৰা এই মাজুলীৰ দলঙলৈকে এই বিশাল পৰিক্ৰমা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আজি আমি এখন নৱজাগ্ৰত অসমৰ ফালে গতি কৰিছো। মোৰ বিশ্বাস যোৱা 5টা বছৰৰ এই অদ্ভুত সাফল্যই, এই 5টা বছৰৰ অসমৰ নৱজাগৰণৰ এই মহান দৃশ্যই আমাৰ অসমখনৰ নৱপ্ৰজন্মক যুগে যুগে প্ৰেৰণা কৰিব ভাৰতবৰ্ষৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ 5খন ৰাজ্যৰ ভিতৰত অসমক নিৰ্মাণ কৰিবলৈ। মই আজিৰ এই পবিত্ৰ দিনটোত পুনৰ এবাৰ ভাৰতৰ সন্মানীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া, আমাৰ সন্মানীয় মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰী ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ সন্মানীয় মন্ত্ৰী মনসুখ মাণ্ডব্য ডাঙৰীয়াক এই মাজুলীৰ মহান ভূমিলৈ আদৰণি জনাই মই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিছো। মোৰ লগত একেলগে ক'ব, ভাৰত মাতা কি। অলপ কম হৈছে নেকি? হয় নহয়? অলপ বেছিকৈ ক'ব লাগিব, যাতে মোদী ডাঙৰী ইয়াত নাই, দিল্লীত আছে, দিল্লীত শুনিব লাগিবনে নাই? মোৰ লগত একেলগে ক'ব, ভাৰত মাতা কি, ভাৰত মাতা কি, ভাৰত মাতা কি। নৰেন্দ্ৰ মোদী, নৰেন্দ্ৰ মোদী, নরেন্দ্র मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय हिमंत बिश्व शर्मा जी को धन्यवाद स्वागत भाषण प्रस्तुत करने के लिए। अब मैं आग्रह करूंगा माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार पत्तन, पौध परिवहन और जलमार्ग श्री मनसुख मंडाविया जी से कि वे अपने विचार व्यक्त करें। आज के अवसर पर उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अविरत विकास रूपी प्यार बांटने वाले भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच में उपस्थित, असम के मुख्यमंत्री आदरणीय सर्बानंद सोनोवाल जी, हमारे बीच में विशेष उपस्थित भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी, हमारे पड़ोस के राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय कोनोट संगमा जी, हेमंत बिश्वास जी, रामेश्वर तेली जी, मंच पर उपस्थित राज्य के सभी मंत्रिमंडलगण, सांसदगण, विधायकगण, उपस्थित सभी भाइयों एवं बहनों, आज असम के लिए एक सुनहरा अवसर है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी आज असम को 10,000 करोड़ की विकास की सौगात देने वाले हैं। नॉर्थ ईस्ट के विकास से भारत का विकास का सपना देखने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी ने नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट के लिए रोडवेज, रेलवेज, हाईवेज और वाटरवेज डेवलपमेंट के लिए एक अहम कार्यक्रम निभाए हैं। हमारे क्षेत्र के विकास में वाटरवेज का एक महत्वपूर्ण योगदान रहे और वाटरवेज के माध्यम से असम और नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट हो, उसके लिए कई योजनाएं भारत सरकार की ओर से चल रही है। नहीं केवल नदी का विकास, मोदी जी ने कहा कि नदी का विकास करना है, निर्मल गंगा के माध्यम से
नमामि गंगा के माध्यम से निर्मल नदी हो रही है और नदी का विकास के साथ नदी से विकास भी करना है। नदी से विकास की योजना के माध्यम से देश में 4000 किलोमीटर इनलैंड वाटरवेज आज के दिन में ऑपरेशनल हो चुके हैं। वाराणसी से हल्दिया तक 1400 किलोमीटर, हल्दिया से सुंदरवन 250 किलोमीटर, सुंदरवन से बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट 800 किलोमीटर और धुबरी से सदिया तक 900 किलोमीटर वो असम में आता है, उसका भी विकास हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने के लिए बांग्लादेश में प्रोटोकॉल रूट के माध्यम से असम के लोअर विभाग करीमगंज बराक नदी के माध्यम से 150 किलोमीटर इनलैंड वाटरवेज डेवलप करके करीमगंज के माध्यम से नॉर्थ ईस्ट के मेघालय, नॉर्थ ईस्ट के त्रिपुरा और हमारे मिजोरम और मणिपुर सभी करीमगंज से 50 से 60 किलोमीटर के डिस्टेंस में आता है। उसके लिए भी आज के दिन में वाटरवेज चालू हो चुका है। अगले दिनों में वह विशेष इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके नॉर्थ ईस्ट में पैदा हुए माल सामान बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट के माध्यम से वो हल्दिया तक और शेष भारत में जा सके, इसके लिए कार्यक्रम बना है। उसके अलावा महाबाहु ब्रह्मपुत्रा एक विशेष कार्यक्रम 3200 करोड़ रुपीज 3200 करोड़ रुपीज खर्च करके कुल मिला के 90 से ज्यादा प्रोजेक्ट, उसमें कम्युनिटी जेटी है, उसमें टूरिस्ट जेटी है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को ले जाने वाली जेटी है, यहां जो वेसेल चल रहे हैं उसका मॉडर्नाइजेशन है। ऐसा करके 3200 करोड़ रुपीज खर्च करके ब्रह्मपुत्र रिवर को नदी ऑपरेशनल के लिए, नेविगेशन ऑपरेशनल के लिए विशेष सज्जता प्राप्त करने के लिए एक खर्च किया जाएगा। उसके माध्यम से आसाम के जनजीवन विशेष सुविधा युक्त होगा और आसाम के जनजीवन और आसाम के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा हो जाएगी। और इसलिए आज के विशेष अवसर पर मैं आप यहाँ की सभी जनता को बधाई देता हूँ और विशेष करके माननीय प्रधानमंत्री जी इस कार्यक्रम में हमारे बीच में जुड़े हैं, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए हमारे बीच में उपस्थित है। माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष अभिनंदन करता हूं। वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद माननीय मनसुख मंडाविया जी, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए हम आपके आभारी हैं। और अब मैं आग्रह करूंगी माननीय केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग श्री नितिन गडकरी जी से कि वो आए और अपने विचार व्यक्त करें। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, आसाम के मुख्यमंत्री सर्बानंद जी, हमारे सहयोगी मंत्री आदरणीय मनसुख भाई, मेघालय के आदरणीय मुख्यमंत्री संगमा जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय हेमंत जी, सभी भारत सरकार के उपस्थित मंत्रीगण, उपस्थित सभी आसाम के सांसदगण, मंत्रीगण, विधायकगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, मुझे आज विशेष रूप से याद आ रही है कि मैं सर्बानंद जी के चुनाव प्रचार के लिए इसी माजुली में आया था और तब लोगों के आग्रह पर मैंने ये कहा था कि ये ब्रिज का निर्माण कार्य निश्चित रूप से होगा और मैं अपने विभाग से ये करके दूंगा। मुझे लग रहा था कि ये ब्रिज 400-500 करोड़ रुपए में हो जाएगा, पर जब मैं दिल्ली गया और अधिकारियों को जब बुलाया तब 4,500-5,000 करोड़ इसकी कीमत मुझे बताई गई। मुझे खुशी है, इस ब्रिज के कारण हमने काफी रिसर्च किया और इस ब्रिज को पूरा करने के लिए इसकी लंबाई 6.75 किलोमीटर है और मुझे इस बात की खुशी है कि टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन करके
जो 4,500 5,000 करोड़ में जो ब्रिज बन रहा था, वो ब्रिज की लागत 925 करोड़ रुपए आई है। और जो यूपी ब्रिज कॉर्पोरेशन को यह कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, वो 620 करोड़ रुपए में उनको इस कार्य का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। इस कार्य को 18 फरवरी 2021 को उनको ऑर्डर मिल चुका है। काम अच्छा होगा और निश्चित रूप से सर्बानंद जी सोनवाल जी के चुनाव के समय मैंने माजुली की जो जनता को जो आश्वासन दिया था, जो विश्वास दिया था, वो 2 साल के अंदर पूरा करने की, हम ब्रिज निर्माण करने के ये विश्वास को आपके साथ जो रखा आपने हमारे ऊपर, इस कार्य को पूरा करने की कोशिश होगी। मुझे खुशी है कि हमारी सरकार में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में अच्छे काम जैसे हो, गुणवत्तापूर्ण काम जैसे हो, वैसे उसकी कीमत के तरफ भी हमारा ध्यान है। आदरणीय मोदी जी के हाथ से जो जोजिला टनल के निर्माण कार्य हमने शुरू किया है, इसकी कॉस्ट पहले 11,000 करोड़ रुपए तक आई थी। 4 बार टेंडर हो चुका था, पर हमने टेक्नोलॉजी और इसमें काफी सुधार करके एक ही प्रोजेक्ट की कॉस्ट 5,000 करोड़ से कम करके देश के 5,000 करोड़ उस प्रोजेक्ट में हमने बचाया है। जिस प्रकार से माजुली के ब्रिज में भी हमने कीमत को कम करके एक अच्छे डिजाइन के साथ इसका विकल्प ढूंढा है, और इसके लिए मलेशियन टेक्नोलॉजी के लिए मैंने यहां के एक्सपर्ट भेजे थे, और स्टील फाइबर प्रीकास्ट में भी हम उपयोग कर रहे हैं, और जो एक्स्ट्रा डोज डिजाइन जो तकनीक है उसका भी इसमें उपयोग हो रहा है। मैं राज्य सरकार को विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि जमीन उन्होंने उपलब्ध कराई है, और जो हमारी ड्यूटी है सैंड पर, मट्टी पर, वो रॉयल्टी ड्यूटी नहीं लगाने से 35 करोड़ रुपए की बचत भी हुई है। मैं फिर से एक बार सर्बानंद सोनवाल जी का अभिनंदन करूंगा, उनको धन्यवाद दूंगा, और विशेष रूप से इस ब्रिज के निर्माण के लिए अगर वो आग्रह नहीं करते तो ये ब्रिज कभी संभव नहीं था, और इसलिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस ब्रिज से शिवसागर, देसांगमुख, टेकेलीफुटा, डाकू का खाना, उत्तरी लखनपुर, माजुली, जोराट तक आवाजाही आसान हो जाएगी। आज मुझे और एक खुशी है कि इसके साथ साथ मैं माजुली परियोजना की भी यहां घोषणा कर रहा हूं, और जिसका कार्य ही 2021 के पहले ही शुरू हो जाएगा। इसकी लंबाई 131 किलोमीटर है। इसकी कीमत 8,730 करोड़ रुपए है। 3 पैकेज में इसका शुभारंभ होगा। पैकेज 1 उत्तरी लखीमपुर से कमलाबाड़ी घाट तक 36.4 किलोमीटर, पैकेज 2 कमलाबाड़ी घाट से जोरहाट तक 27.4 किलोमीटर, और पैकेज 3 शिव सागर से उत्तरी लखीमपुर तक 73.88 किलोमीटर। तो मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ी, एक हमारे माननीय प्रधानमंत्री की ओर से आसाम की जनता को एक बहुत बड़ा तोहफा है। इसके साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज गुबरी फुलवाड़ी ये महत्वपूर्ण ब्रिज का भी शुभारंभ कर रहे हैं। ये ब्रिज की लंबाई 19.282 किलोमीटर है, और इसकी लागत 4,500 करोड़ रुपए है। जनवरी से इसका काम शुरू हो गया है। आज मेरा विश्वास है कि गुबरी एवं फुलवाड़ी मेघालय के बीच ब्रह्मपुत्र नदी पर ब्रिज की मांग 10 साल पुरानी थी। यह ब्रिज बनने से गुबरी और फुलवाड़ी के बीच की दूरी 203 किलोमीटर कम हो जाएगी, और फुलवाड़ी के लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा, बाजार के लिए गुबरी सबसे नजदीक शहर मिल जाएगा। यह ब्रिज फुलवाड़ी के पास स्थित फकीरगंज रिवर पोर्ट के लिए भी कनेक्टिविटी उपलब्ध कराएगा। यह ब्रिज सामरिक और सामाजिक मामलों में भी काफी महत्वपूर्ण है, और इस ब्रिज से आसाम, मेघालय का पश्चिम बंगाल के साथ सीधा संपर्क हो जाएगा। पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर से गुबरी तक 55 किलोमीटर सड़क निर्माण का काम अक्टूबर 2021 में भी शुरू हो जाएगा। इसका भी मैं आज ऐलान करता हूं। यह ब्रिज बनने से भूटान, बांग्लादेश आने जाने की 150 किलोमीटर की दूरी और 5 घंटे का समय बचेगा, और इसलिए मैं आसाम और मेघालय की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। मुझे खुशी है कि आने वाले समय में इस साल में और 1 लाख करोड़ रुपए की परियोजना
हम आसाम में शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने हमें कहा है कि जो नॉर्थ ईस्ट की एरिया है, जिसके ऊपर विशेष रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में ध्यान नहीं दिया गया, उसके तरफ उन्होंने विशेष ध्यान देने का हम सबको आदेश दिया है। और उन्हीं के आदेश के अनुरूप आज तेजी से नॉर्थ ईस्ट में आसाम हो, मेघालय हो, त्रिपुरा हो, नागालैंड हो, सभी नॉर्थ ईस्ट में बहुत तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। चाहे रोड का काम हो, चाहे रेलवे का काम हो, चाहे वाटरवेज का काम हो, या चाहे एयरपोर्ट का काम हो। मैं जब शिपिंग मिनिस्टर आज मनसुख भैया उपस्थित है, उन्होंने भी आज 3,000 करोड़ के कामों का शुभारंभ किया है। और जब मैं शिपिंग मंत्री था तो ब्रह्मपुत्रा को भी जलमार्ग बनाने का एक मौका मुझे मिला था। आसाम का विकास हो रहा है, आसाम की तस्वीर बदल रही है, आसाम प्रगति और विकास की ओर आगे दौड़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नॉर्थ ईस्ट और आसाम की निरंतर प्रगति हो रही है। मैं फिर से एक बार सर्बानंद सोनोवाल जी को विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा, अभिनंदन करूंगा। और आज हमारे विभाग से करीब 14 से 15,000 करोड़ रुपए का ये सब कार्य आज आपके क्षेत्र में हो रहा है, इसकी मुझे बहुत बहुत खुशी है। पिछले बार मैं आया था, यहाँ के साधु संत सबने आशीर्वाद दिए थे, उन्होंने आग्रह किया था, और मुझे व्यक्तिगत रूप से आज खुशी है कि सोनोवाल जी ने जो मांगा था, जिसकी जबान मैंने दी थी, वो हमारे संतों के आशीर्वाद से आज उसको पूरा करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। इसलिए फिर से एक बार मैं माजुली की जनता को हाथ जोड़कर विनम्रता से अभिवादन करते हुए उनको आशीर्वाद मानता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। धन्यवाद माननीय नितिन गडकरी जी। हमें काफी खुशी है कि आज आप हमारे बीच आए और आपने अपने विचार व्यक्त किए। अब मैं आग्रह करूंगी असम के माननीय मुख्यमंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी से कि वो अपने विचार व्यक्त करें। আজি এই সভাখনত আমাৰ মাজত ভাৰ্চুৱেলি যুগান্ত ৰচনা কৰা দেশৰ আদৰ্শবাদী নেতা, মহান নেতা, প্ৰধানমন্ত্ৰী পৰম শ্ৰদ্ধেয় নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी डांगरिया, मेघालय मुख्यमंत्री डॉक्टर कर्नाड सांगमा डांगरिया, मनसुख मांडविया डांगरिया, रामेश्वर तेली डांगरिया, असम सरकार सतीर्थ मंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा डांगरिया, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद डांगरिया, और आज এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকা অসম চৰকাৰৰ মোৰ সতীৰ্থ মন্ত্ৰীসকল, সাংসদসকল, বিধায়কসকল আৰু মিচিং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ মুৰব্বী চাৰিঙীয়া ডাঙৰীয়া, দেউৰী অট'নমাছ কাউন্সিলৰ মুৰব্বী দেউৰী ডাঙৰীয়াৰ লগতে আজি মঞ্চত উপস্থিত থকা বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল, পৰম শ্ৰদ্ধাৰ মাজুলীৰ সত্ৰাধিকাৰ প্ৰভুসকল, বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ ধৰ্মগুৰুসকল, পৰম শ্ৰদ্ধা ৰাইজ আৰু সাংবাদিক বন্ধুসকল, জয় জয়তে। আজি এই সভাখনত সমাবেত হোৱা আপোনালোক সকলোৰে প্ৰতি মই মোৰ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছো। আজি দিনটো মাজুলীবাসীৰ বাবে স্মৰণীয় দিন, কাৰণ বহু বছৰ ধৰি মাজুলী ৰাইজে মনে প্ৰাণে বিচাৰিছিল যে যোৰহাট মাজুলী দলংখন নিৰ্মাণ হ'ব লাগে। গতিকে আজি সেই কাম সম্ভৱ কৰি তুলিলে ভাৰতবৰ্ষৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই।
গতিকে সেইভাবে মই মাজুলী ৰাইজৰ হৈ আন্তৰিকতাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো। লগতে ধন্যবাদ জনাইছো আমাৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰী ডাঙৰীয়াক। আজি মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আৰু এখন দলং অসমৰ ৰাইজৰ বাবে উপহাৰ দিছে, ধুবুৰী ফুলবাৰী দলং। তাৰ বাবেও মই মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জনাইছো। আজি এই সভাত গাডকাৰী ডাঙৰীয়াই লখিমপুৰ, শিৱসাগৰ, যোৰহাট, মাজুলী হৈ যিকেইটা প্ৰকল্পৰ কাম 8,000 কোটি টকা ব্যয় কৰি সম্পূৰ্ণ কৰা ঘোষণা কৰিলে তাৰ বাবে মই তেখেতক আন্তৰিকতাৰে ধন্যবাদ জনাইছো। পৰম শ্ৰদ্ধা ৰাইজ, আজি এই সময়টো আমি বেছি দীঘলীয়া বক্তব্য দিয়াৰ সময় নহয়, কাৰণ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই খন্তেক পাছতেই আজি 2খন দলঙৰ কাম আৰু ইয়াৰ উপৰিও ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ 8 এই প্ৰকল্পৰ অধীনত 3,200 কোটি টকাৰ প্ৰকল্পৰ কাম আজি শুভাৰম্ভ হ'ব। ইয়াৰ বাবে মই শ্বিপিং মিনিষ্টাৰ মাণ্ডৱীয় ডাঙৰীয়াক বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জনাইছো। আপোনালোকৰ মনত আছে নমামি ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু নমামি বৰাক দুটা অনুষ্ঠান আমি আয়োজন কৰিছিলো। সেই সময়ত ৰাইজৰ মনত বহু প্ৰশ্ন উদয় হৈছিল, কি হ'ব এই অনুষ্ঠান আয়োজন কৰি। কিন্তু আজি ইয়াক বাস্তৱায়িত কৰাৰ বাবে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যি মহৎ প্ৰকল্পৰ কাম হাতত ল'লে, আগন্তুক দিনত 2খন নদীৰ যোগেদি আমাৰ অৰ্থনৈতিক বুনিয়াদ কেনেধৰণে গঢ় দিব পাৰি তাৰ বাবে নতুন নতুন প্ৰকল্প আজি ইয়াত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ শক্তিশালী সংকল্প তেখেতে গ্ৰহণ কৰিলে। পৰম শ্ৰদ্ধা ৰাইজ, এতিয়াৰ পৰা আমি মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰা আগন্তুক দিনত আমাৰ ভৱিষ্যত গঢ় দিয়াৰ বাবে বহু সুবিধা আদায় কৰিব পাৰিম। যাতায়াত ব্যৱস্থাৰ যোগেদি, যোগাযোগ ব্যৱস্থাৰ যোগেদি, আমদানি আৰু ৰপ্তানি, এই ক্ষেত্ৰতে আমি আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ 2টা পাৰত বসবাস কৰা ৰাইজে উল্লেখযোগ্য আজি তেখেতসকলে সুবিধা বুটলিবলৈ সক্ষম হ'ব। গতিকে মই আৰু বেছি দীঘলীয়া বক্তব্য নাৰাখো। পৰম শ্ৰদ্ধাৰ মাজুলীবাসী ৰাইজ, আপোনালোক মহান, আপোনালোক মহান, আপোনালোক মহান। কাৰণ আপোনালোকৰ মহানতাই আজি এই পৰিৱৰ্তন মাজুলীৰ জীৱনলৈ কঢ়িয়াই আনিছে। গতিকে আজি এইখন সমাজক সেৱা আগবঢ়াই মই অত্যন্ত ধন্য মানিছো। কাৰণ এইখন সমাজ আধ্যাত্মিকভাৱে, সাংস্কৃতিকভাৱে সবল, সজাগ, সচেতন। তাৰ বাবে আজি মাজুলীয়ে বিশ্বৰ মানৱ সমাজক এটা আধ্যাত্মিক পোহৰ দিবলৈ সক্ষম হৈছে, মানৱীয় অনুভূতি প্ৰদান কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আজি সত্ৰাধিকাৰ প্ৰভুসকল আছে, আমাৰ ধৰ্মগুৰুসকল আছে, বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ, মই সকলোৱে শ্ৰীচৰণত মই কোটি কোটি প্ৰণিপাত যাচিছো। আজি আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদৰ বাবে এইবিলাক কাম সম্ভৱ হৈছে। গতিকে আজি অসমে, বিশেষকৈ বিজেপি নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰখনে 2016 চনৰ পৰাই অসমৰ বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়ামক একাকাৰ কৰি সমন্বয় যি শক্তিশালী যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে, ইয়াৰ বাবে আজি অসমত দুপদ দুপে প্ৰগতি সম্ভৱ হৈছে আৰু চৌদিশে প্ৰতিটো জনগোষ্ঠীয়ে সন্মান সহকাৰে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। গতিকে আজি এই মুহূৰ্তত মই এইখিনি কথাকে কৈ পুনৰবাৰ মাজুলীবাসী ৰাইজক বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছো, আপোনালোকে আগন্তুক দিনত এই দলংখনৰ কাম যাতে সময়মতে সম্পূৰ্ণ হয় তাৰ বাবে আপোনালোকে সকলোৱে যেন प्रतिटो मुहूर्तते आंतरिकतारे सहयोगिता आगबढ़ाए। मैं आज इस अवसर पर असम की जनता की तरफ से हमारे देश के आदर्शवादी नेता परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हृदय से मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आपने असम और नॉर्थ ईस्ट को उजागर किया। आपने असम और नॉर्थ ईस्ट को प्रगति के रास्ते पर चलने के लिए आपने जोर दिया, शक्ति दिया, हिम्मत दिया, साहस दिया और मदद किया। आज आपके वजह से आज नॉर्थ ईस्ट सारा देश में अपना पहचान बनाने में सफल हुए हैं। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप महान हैं और आपका दिल में असम और नॉर्थ ईस्ट के लिए जो जगह है हम उसको समझ सकते हैं। आप इसमें इंसानियत की भावना शक्ति से इस देश को सेवा किया है, इसलिए आपके लिए लोगों का दिल में जो विश्वास है, जो आपके लिए जो श्रद्धा है, तो ये हमेशा रहेंगे। इसी बात को कहकर मैं हमारे आदरणीय मंत्री नितिन गडकरी जी को धन्यवाद देता हूं, मांडविया जी को धन्यवाद देता हूं और मैं चाहता हूं कि अगले दिनों में उन लोगों ने जो भी
प्रोजेक्ट यहाँ ऐलान किया है वो साकार करने में वो भी मजबूत कदम उठाएंगे। इसी शब्दों के साथ मैं अपने इस मंच पर उपस्थित सारे सहयोगी की तरफ से फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देते हुए अपने भाषण को विराम देता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय असम, जय हिंद। धन्यवाद माननीय सर्बानंद सोनोवाल जी। अपने लोगों के बीच रहकर अपने मन की बात कहने से एक अलग खुशी मिलती है। आपके सामने माजुली एवं धुबरी में बनने वाले ब्रिज पर एक लघु फिल्म प्रस्तुत की जा रही है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, ऊंचे ऊंचे पहाड़, नदियां, अनूठी संस्कृति और जैव विविधताओं से भरा नॉर्थ ईस्ट, जहां के 8 राज्य अष्टलक्ष्मी के रूप में एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को दे रहे हैं मजबूती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विजनरी लीडरशिप में नॉर्थ ईस्ट का तेज गति से हो रहा है लगातार विकास। नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर निरंतर बल दिया जा रहा है। रोडवेज, हाईवेज, एयरवेज, वाटरवेज, इसके साथ साथ गैस ग्रिड, गैस पाइपलाइन का भी आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑप्टिकल फाइबर का नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर ग्रिड की व्यवस्था, ऐसे अनेक काम नॉर्थ ईस्ट में एक प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछाया जा रहा है। समृद्धि और संपन्नता की अपार संभावना को समेटे भारत सरकार के निर्णायक फैसलों से गत 7 वर्षों में भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में लगभग 6000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और सुधार हेतु लगभग 72,000 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई, जिसमें 20,235 करोड़ की राशि से 3,110 किलोमीटर का कार्य पूर्ण हो चुका है, जिसके अंतर्गत लंबे राजमार्ग और नदी पर पुलों का निर्माण जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स क्षेत्र में लोगों के जीवन को सुगम और विकास को नई रफ्तार दे रहे हैं। आज असम और नॉर्थ ईस्ट के लिए एक और ऐतिहासिक दिन है, जब प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के क्रम में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। लगभग 5,000 करोड़ की लागत से बनने वाला असम के डुबरी और मेघालय के फुलबारी के बीच देश के सबसे बड़े रिवर ब्रिज का शिलान्यास और 900 करोड़ से अधिक की लागत से माजुली जोरहाट ब्रिज के निर्माण कार्य का शुभारंभ प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। डुबरी फुलबारी पुल के निर्माण से एक बड़े क्षेत्र के लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन आएगा। ये पुल 250 किलोमीटर की दूरी को कम कर दोनों स्थानों के बीच की दूरी को बना देगा केवल 19 किलोमीटर और 6 घंटे की कष्टदायक यात्रा को बदल देगा केवल 20 मिनट की सुगम यात्रा में। साथ ही 21वीं सदी की कनेक्टिविटी से स्वास्थ्य और आपातकालीन सेवाओं तक लोगों की पहुंच होगी मिनटों में। बड़े पैमाने पर रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बनेंगे और पूर्वोत्तर राज्यों की आर्थिक गतिविधियों को नई ऊर्जा और नई गति मिलेगी। असम मेघालय का ये पुल पेट्रोलिंग वाहनों के साथ साथ एम्बुलेंस, 24/7 सीसीटीवी कैमरे, अत्याधुनिक नियंत्रण कक्ष जैसी सुविधाओं से सुसज्जित होगा। दूसरी ओर माजुली जोरहाट ब्रिज के निर्माण से जोरहाट और माजुली के बीच 2 लेन कनेक्टिविटी स्थापित होगी। हस्तशिल्प और हथकरघा उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। पर्यटन व माजुली की संस्कृति और आस्था को बढ़ावा मिलेगा और नदी द्वीप माजुली की विकास प्रक्रिया को गति मिलेगी। पूर्वोत्तर के समग्र विकास को समर्पित सरकार दूर दराज के क्षेत्रों को पुलों से जोड़कर आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को नई राह से मिला रही है। ऐतिहासिक निर्णय, दृढ़ संकल्प के साथ देश के पूर्वोत्तर राज्यों में नए पुलों की शुरुआत। और अब मैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री
श्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करूंगी कि वो डिजिटल माध्यम से ई ब्लॉक के जरिए माजुली ब्रिज के निर्माण के लिए भूमि पूजन और धुबुरी फुलबारी ब्रिज का शिलान्यास करें। प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगी कि वो महाबाहु ब्रह्मपुत्र परियोजना का शुभारंभ डिजिटल माध्यम से करें और साथ ही आप अपने स्क्रीन्स पर देख सकते हैं भूमि पूजन की जो झलकियां है वो और साथ में शिलान्यास की झलकियां भी। महाबाहु ब्रह्मपुत्र के किनारे हो रहे हैं सशक्त। पूर्वोत्तर भारत लिख रहा है अपना सुनहरा वक्त। देश के दीर्घदृष्टा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देखा स्वप्न पूर्वोत्तर और ब्रह्मपुत्र के विकास की ओर। पूर्वी भारत और नॉर्थ ईस्ट को इनलैंड वाटरवे यानी नदी जलमार्ग आधारित योजनाओं से विशेष लाभ हो रहा है और आने वाले समय में जल शक्ति के माध्यम से पूरे नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने का नेटवर्क भारत के विकास में एक स्वर्णिम पृष्ठ के रूप में उभर करके आने वाला है। इसी विजन को साकार करने हेतु सामने आया प्रोजेक्ट महाबाहु ब्रह्मपुत्र। अंदाजन 3,200 करोड़ के खर्च से निर्मित हो रहा महाबाहु ब्रह्मपुत्र प्रोजेक्ट कुछ इस तरह आकार लेगा। इस सूची में सबसे पहले आता है जोगीघोपा में निर्मित हो रहा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के बनने से यहाँ रेल, सड़क एवं इनलैंड वाटर यानी कि नदी के रास्ते कार्गो मूवमेंट को नई दिशा मिलेगी। महाबाहु ब्रह्मपुत्र प्रोजेक्ट के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ आसाम और मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवे शुरू करने जा रही है जिबोंडिंगा स्कीम फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ वेसल, जिसके तहत स्थानिक नौका चालकों को पुरानी बोट को बदलकर मॉडर्न इंजन से सज्जित नई नावों के निर्माण या अधिग्रहण में आर्थिक रूप से सब्सिडी दी जाएगी। इसी के साथ मौजूद समय में चल रहे फ्लीट का सुरक्षा सर्वेक्षण करके उसके लिए फ्लीट मॉडर्नाइजेशन के कार्य को भी गति मिलेगी और पूरी फ्लीट को सुरक्षा से सुसज्जित रखने के लिए पुराने हो चुके जीपीएस रिसीवर्स, कंपास और अन्य सुरक्षा उपकरणों का नवीनीकरण किया जाएगा। इसी नवीनीकरण के साथ साथ आसामी उत्पादों के आवागमन हेतु बनाई जाएगी कम्युनिटी जेटी, जैसे कि फल एवं सब्जियों के लिए, चाय के उत्पादों के लिए, एग्रो प्रोडक्ट्स के लिए, फिशरीज के लिए और फर्टिलाइजर के लिए कम्युनिटी जेटीज। कम्युनिटी जेटी की बदौलत छोटे बड़े लोडिंग व्हीकल को आसानी से लोड अनलोड किया जाएगा। छोटे छोटे उद्योगों के साथ साथ बढ़ेगी बड़ी बड़ी जरूरतें और इन जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाए जाएंगे परमानेंट टर्मिनल्स, जिसके तहत नॉर्थ एवं साउथ गुवाहाटी, जोगीघोपा, माइया, सोनामुरा जैसे बड़े और प्रमुख स्थानों पर परमानेंट टर्मिनल्स का निर्माण होगा। जैसे जैसे बड़े स्थलों पर परमानेंट टर्मिनल्स का निर्माण किया जाएगा, वैसे ही छोटे स्थलों पर मॉड्यूलर टर्मिनल्स का निर्माण किया जाएगा। मॉड्यूलर टर्मिनल्स पानी पे तैरते ऐसे टर्मिनल्स हैं जो कि पानी के प्रवाह के आधार पर एक या दूसरी जगह स्थापित किए जा सकते हैं। इन सारे ट्रांसपोर्टेशन का सीधा लाभ यहाँ के पर्यटन को भी मिलेगा और साथ ही ब्रह्मपुत्र नदी पर बनेंगे वाटर एरोड्रोम टर्मिनल्स,
जो कि पानी की सतह पर लैंड होने वाले हवाई जहाज के जरिए तेज आवागमन का एक विश्वसनीय स्रोत बनेगा। कार्य कर रहे सभी टर्मिनल एवं वेसल के संस्थागत, नियामक एवं सुरक्षा आयामों को बढ़ाया जाएगा और नेविगेशन सिस्टम के साथ रिवर इंफॉर्मेशन सिस्टम को सभी वेसल में शामिल किया जाएगा। ब्रह्मपुत्र में बना नेशनल वाटरवे 2 एवं बराक नदी पे बना नेशनल वाटरवे 16 इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट के जरिए पूर्व एवं उत्तर पूर्वीय भारत को सुचारू कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। साथ ही मौजूद जेटी का मॉडर्नाइजेशन होगा और उनकी कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी। विकास के मार्ग पर चल रही शिप को कोई भी अड़चन का सामना ना करना पड़े, इस हेतु शिप रिपेयर फैसिलिटी का निर्माण किया जाएगा। इन सारे निर्माणों के मूल में है समृद्ध पूर्वोत्तर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस विजन की बदौलत ब्रह्मपुत्र के किनारों का विकास लेकर आएगा रोजगारी के नए अवसर और बड़े ही गर्व से ले चलेगा हमें समृद्ध पूर्वोत्तर से संपन्न भारत की। आपके सामने माजुली से निमाती, दक्षिण गुवाहाटी से उत्तर गुवाहाटी और धुबुरी से हाटी सिंगीमारी रोपैक्स जलयान सेवाओं, अंतर्देशीय जल परिवहन टर्मिनल और पर्यटक जेटिया एवं ई पोर्टल्स, कार डी एवं पानी पर एक लघु फिल्म प्रस्तुत की जाएगी। जहां पानी है वहां तरक्की है। देश के दीर्घदृष्टा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूर्वोत्तर और ब्रह्मपुत्र के विकास की दिशा में प्रस्तुत की रूपरेखा। पूर्वोत्तर की सुंदरता में लीन होने आ रहे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सैलानियों के लिए जोगीघोपा, पांडु, विश्वनाथ घाट और निमाटी घाट जैसे टूरिस्ट पॉइंट पर शिलान्यास हो रहा है टूरिस्ट जेटी का। यह जेटीज क्रूज वेसल और अन्य वाटर टूरिज्म के जरिए बढ़ाएगी सैलानियों की सहूलियत। इसी के साथ कार्गो डेटा यानी कि कार्डी और पोर्टल फॉर एसेट्स एंड नेविगेशनल इंफॉर्मेशन यानी कि पानी, दो ऐसे पोर्टल तैयार किए गए हैं जो स्टेक होल्डर्स के डिजिटल साथी बनेंगे। कार्डी पोर्टल पर माल सामान से संलग्न सारी जानकारी और शिपर एवं कार्गो ट्रैफिक व पैसेंजर ट्रैफिक के डेटा मिल पाएंगे। साथ ही पानी के जरिए नदी मार्ग से संबंधित सारी जानकारियां मुहैया करवाई जाएगी। साथ ही प्रधानमंत्री कर रहे हैं रोपेक्स फेरी सर्विस का लोकार्पण। असम में नेमाटी और माजुली के बीच एमवी रानी गायदिनलियू और एमवी सचिन देव बर्मन फेरी, धुबरी और हाट सिंगीमारी के बीच एमवी बॉक खतिंग फेरी एवं नॉर्थ और साउथ गुवाहाटी के बीच एमवी जेएफआर जेकब फेरी कार्यरत होगी। तपस्वी जोगियों के क्षेत्र जोगीघोपा में अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय आवागमन को बढ़ावा देने हेतु हो रहा है शिलान्यास इनलैंड वाटरवेज टर्मिनल का। लॉजिस्टिक की सारी सुविधाओं से सुसज्जित यह टर्मिनल भूटान और बांग्लादेश के साथ व्यापार के नए अवसर लेकर आएगा। इन सारे निर्माणों के मूल में है पूर्वोत्तर के करोड़ों लोगों के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करना। इसका अर्थ है आत्मनिर्भर भारत के लिए रोजगार सृजन, क्योंकि पूर्वोत्तर संपन्न होगा तब देश समृद्ध होगा। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि डिजिटल माध्यम से महाबाहु ब्रह्मपुत्र परियोजना के अंतर्गत माजुली से निमाटी, दक्षिण गुवाहाटी से उत्तर गुवाहाटी और धुबरी से हाथी सिंगमारी रोपेक्स जलयान सेवाओं का फ्लैग ऑफ, अंतर्देशीय जल परिवहन टर्मिनल और पर्यटक जेटियों जोगीघोपा, पांडु, विश्वनाथ घाट और निमाटी में निर्माण के लिए शिलान्यास तथा व्यापार को सुगम बनाने के लिए 2 ई पोर्टल कार्डी करें।
अब आप बड़े स्क्रीन पे रोपेक्स सर्विस और अंतर्देशीय जल परिवहन टर्मिनल के शिलान्यास की झलकियां देख सकते हैं। और अब मैं पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगी कि डिजिटल माध्यम से वो उत्तर पूर्व डाटा सेंटर गुवाहाटी का शिलान्यास करें। उत्तर पूर्व डेटा सेंटर के भूमि पूजन की झलकियां भी बड़े स्क्रीन पर और जो हमें डिजिटली जुड़े हुए हैं हमसे वो भी इसको देख सकते हैं। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह करूंगा कि वे माजुली, गुवाहाटी, जोगीघोपा और धुबरी में उपस्थित एवं डिजिटल माध्यम से जुड़े देश के समस्त गणमान्य व्यक्तियों को संबोधित करें। नमस्कार असम। श्रीमंत शंकरदेव की कर्मस्थली और सत्रों की भूमि मजुली को मेरा प्रणाम। केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी श्री नितिन जी, रविशंकर जी, मनसुख भाई, असम के मुख्यमंत्री श्री सर्बानंद जी, मेघालय के मुख्यमंत्री संगमा जी, असम के वित्त मंत्री डॉक्टर हेमंता बिस्वा शर्मा जी और असम के मेरे प्यारे भाई और बहनों, ऐसा लग रहा है कि आली आए लिगांग उत्सव की उमंग दूसरे दिन भी जारी है। कल मिसिंग समुदाय के लिए खेती और किसानी के उत्सव का दिन था और आज मजुली सहित पूरे असम और नॉर्थ ईस्ट के विकास का एक बहुत बड़ा महोत्सव है। ताकामे लिगांग आछेंगे छेली ड्रुग। भाइयों और बहनों, भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका जी ने कभी लिखा था, महाबाहु ब्रह्मपुत्र महामिलनर तीर्थ कला कत जुग धीरे आही छे प्रकाकी हमनवर अर्थ, यानी ब्रह्मपुत्र का विस्तार बंधुत्व का, भाईचारे का, मिलन का तीर्थ है। सालों साल से ये पवित्र नदी मेलजोल का, कनेक्टिविटी का पर्याय रही है। लेकिन ये भी सही है कि ब्रह्मपुत्र पर कनेक्टिविटी से जुड़े जितने काम पहले होने चाहिए थे उतने नहीं हुए। इस वजह से असम के भीतर भी और नॉर्थ ईस्ट के अन्य क्षेत्रों में कनेक्टिविटी हमेशा एक बड़ी चुनौती बनी रही। महाबाहु ब्रह्मपुत्र के आशीर्वाद से अब दिशा में तेजी से काम हो रहा है। बीते वर्षों में केंद्र और असम की डबल इंजन सरकार ने इस पूरे क्षेत्र की भौगोलिक और सांस्कृतिक दोनों प्रकार की दूरियों को कम करने का प्रयास किया है। हमने ब्रह्मपुत्र की शाश्वत भावनाओं के अनुरूप सुविधा, सुअवसरों और संस्कृति के पुल बनाए हैं, सेतु बनाए हैं। असम सहित पूरे नॉर्थ ईस्ट की फिजिकल
और कल्चरल इंटीग्रिटी को बीते सालों में सशक्त किया गया है। साथियों, आज का दिन असम सहित पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए इस व्यापक विजन को विस्तार देने वाला है। डॉक्टर भूपेन हजारिका सेतु हो, बोगीबिल ब्रिज हो, सरायघाट ब्रिज हो, ऐसे अनेक ब्रिज आज असम का जीवन आसान बना रहे हैं। ये देश की सुरक्षा को मजबूत करने के साथ ही हमारे वीर जांबाजों को भी बड़ी सहूलियत दे रहे हैं। असम और नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग हिस्सों को जोड़ने के इस अभियान को आज और आगे बढ़ाया गया है। आज से 2 और बड़े ब्रिज पर काम शुरू हो रहा है। जब कुछ वर्ष पहले मैं मोजुली द्वीप गया था तो वहां की समस्याओं को करीब से महसूस किया था। मुझे खुशी है कि सर्बानंद सोनोवाल जी की सरकार ने इन मुश्किलों को कम करने के लिए पूरी निष्ठा से प्रयास किया है। मजूली में असम का पहला हेलीपोर्ट भी बन चुका है। भाई और बहनों, अब मजूली वासियों को सड़क का भी तेज और सुरक्षित विकल्प मिलने जा रहा है। आपकी बरसों पुरानी मांग आज पुल के भूमि पूजन के साथ ही पूरी होनी शुरू हो गई है। कालीबाड़ी घाट से जोरहाट को जोड़ने वाला 8 किलोमीटर का ये पुल मजूली के हजारों परिवारों की जीवन रेखा बनेगा। ये ब्रिज आपके लिए सुविधा और संभावनाओं का सेतु बनने वाला है। इसी तरह धुबरी से मेघालय में फुलबारी तक 19 किलोमीटर लंबा पुल जब तैयार हो जाएगा तो इससे बराक घाटी की कनेक्टिविटी मजबूत होगी। यही नहीं, इस पुल से मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा भी असम से दूरी भी बहुत कम हो जाएगी। सोचिए, मेघालय और असम के बीच अभी सड़क मार्ग से जो दूरी करीब 250 किलोमीटर है, भविष्य में सिर्फ 19-20 किलोमीटर रह जाएगी। ये ब्रिज अन्य देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय यातायात के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगा। भाइयों और बहनों, ब्रह्मपुत्र और बराक सहित असम को अनेक नदियों की जो सौगात मिली है, उसको समृद्ध करने के लिए आज महाबाहु ब्रह्मपुत्र प्रोग्राम शुरू किया गया है। ये प्रोग्राम ब्रह्मपुत्र के जल से इस पूरे क्षेत्र में वाटर कनेक्टिविटी को, पोर्ट लेड डेवलपमेंट को सशक्त करेगा। इस अभियान की शुरुआत में आज निमाती मजूली नॉर्थ और साउथ गुवाहाटी धुबरी तिसिंगमारी के बीच 3 रोपैक्स सेवाओं का उद्घाटन किया गया है। इसी के साथ असम इतने बड़े स्तर पर रोपैक्स सर्विस से जुड़ने वाला देश का अग्रणी राज्य बन गया है। इसके अलावा जोगीघोपा में इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट टर्मिनल सहित ब्रह्मपुत्र पर 4 जगह टूरिस्ट जेटी बनाने का काम भी शुरू किया गया है। मजूली सहित असम को, नॉर्थ ईस्ट को बेहतर कनेक्टिविटी देने वाले ये प्रोजेक्ट इस क्षेत्र में विकास की गति को और तेज करेंगे। 2016 में आपके दिए एक वोट ने कितना कुछ करके दिखाया है। आपके वोट की ये ताकत अभी असम को और ऊंचाई पर लेकर जाने वाली है। भाइयों और बहनों,
गुलामी के कालखंड में भी असम देश के संपन्न और अधिक रेवेन्यू देने वाले राज्यों में से एक था। यहां तक कि चिटगांव और कोलकाता पोर्ट तक चाय और पेट्रोलियम पदार्थ ब्रह्मपुत्र, पद्मा, मेघना नदियां और रेल लाइनों से होकर ही पहुंचते थे। कनेक्टिविटी का यही नेटवर्क असम की समृद्धि का बड़ा कारण था। लेकिन आजादी के बाद जहां इस इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाना जरूरी था, इन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया गया। जलमार्ग पर फोकस नहीं किया गया तो लगभग खत्म ही हो गए। इसी क्षेत्र में अव्यवस्था और अशांति के पीछे विकास को लेकर ये लापरवाही भी एक वजह तो थी ही थी। इतिहास में की गई इन गलतियों को सुधारने की शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी। अब उनका और विस्तार किया जा रहा है, उन्हें और गति दी जा रही है। अब असम का विकास प्राथमिकता में भी है और इसके लिए दिन रात प्रयास भी हो रहा है। भाई और बहनों, बीते 5 वर्षों में असम की मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को फिर से स्थापित करने के लिए एक के बाद एक कदम उठाए गए हैं। कोशिश ये है कि असम को, नॉर्थ ईस्ट को दूसरे पूर्वी एशियाई देशों के साथ हमारे सांस्कृतिक और व्यापारिक रिश्तों का भी केंद्र बनाया जाए। इसलिए इनलैंड वाटरवेज को यहां एक बड़ी ताकत बनाने पर काम चल रहा है। हाल में ही बांग्लादेश के साथ वाटर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए एक समझौता भी किया गया है। ब्रह्मपुत्र और बराक नदी को जोड़ने के लिए हुगली नदी में इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट पर काम चल रहा है। इससे असम के अलावा मेघालय, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा को भी हल्दिया, कोलकाता, गुवाहाटी और जोगीघोपा के लिए एक वैकल्पिक कनेक्टिविटी मिलेगी। यानी अभी नॉर्थ ईस्ट को शेष भारत से जोड़ने के लिए जिस संकरे से क्षेत्र पर हमारी निर्भरता रहती है, उस निर्भरता को ये रास्ता कम करेगा। भाई और बहनों, जोगीघोपा का टीडब्ल्यूटी टर्मिनल, आईडब्ल्यूटी टर्मिनल इस वैकल्पिक रास्ते को और मजबूत बनाएगा और असम को कोलकाता से हल्दिया पोर्ट से जलमार्ग द्वारा जोड़ेगा। इस टर्मिनल पर भूटान और बांग्लादेश के कार्गो, जोगीघोपा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के कार्गो और ब्रह्मपुत्र नदी पर अलग अलग स्थानों के लिए आने जाने की सुविधा मिलेगी। साथियों, अगर सामान्य जन की सुविधा प्राथमिकता हो और विकास का लक्ष्य अटल हो तो नए रास्ते बन ही जाते हैं। मजुली और नेमाती के बीच रोपैक्स सेवा ऐसा ही एक रास्ता है। इससे अब आपको सड़क के रास्ते करीब 450 किलोमीटर घूमकर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप रोपैक्स से सिर्फ 12 किलोमीटर का सफर करते हुए अपनी साइकिल, स्कूटर, बाइक या कार को जहाज में ले जा सकते हैं। इस रास्ते पर जो 2 जहाज चलाए जा रहे हैं, वो एक बार में करीब 1600 यात्री और दर्जनों वाहनों ले जा पाएंगे। ऐसी ही सुविधा अब गुवाहाटी के लोगों को भी मिलेगी। अब उत्तरी और दक्षिण गुवाहाटी के बीच की दूरी 40 किलोमीटर से कम होकर सिर्फ
3 किलोमीटर तक सीमित हो जाएगी। इसी तरह धुबरी और हथसिंगी मारी के बीच इसकी दूरी करीब 225 किलोमीटर से कम होकर के 30 किलोमीटर तक रह जाएगी। साथियों, हमारी सरकार द्वारा सिर्फ जलमार्ग ही नहीं बनाए जा रहे हैं, बल्कि इनका उपयोग करने वालों को सटीक जानकारी भी मिले, इसके लिए भी आज ई पोर्टल लॉन्च किए गए हैं। कार डी पोर्टल से नेशनल वाटरवे सभी कार्गो और कुछ से जुड़े ट्रैफिक डेटा को रियल टाइम पर कलेक्ट करने में मदद मिलेगी। इसी तरह पानी पोर्टल नौचालन के अलावा वाटरवे के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी जानकारियां भी देगा। जीआईएस आधारित भारत मैप पोर्टल उन लोगों की मदद करता है जो यहां घूमने फिरने या व्यापार कारोबार के लिए आना चाहते हैं। आत्मनिर्भर भारत के लिए मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का देश में विकास हो रहा है। असम उसका बेहतरीन उदाहरण होने वाला है। भाइयों और बहनों, असम और नॉर्थ ईस्ट की वाटर, रेलवे, हाईवे कनेक्टिविटी के साथ ही इंटरनेट कनेक्टिविटी भी उतनी ही जरूरी है। इस पर भी लगातार काम हो रहा है। अब सैकड़ों करोड़ रुपए के निवेश से गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट का पहला और देश का 6ठा डेटा सेंटर भी बनने वाला है। ये सेंटर नॉर्थ ईस्ट के सभी 8 राज्यों के लिए डेटा सेंटर हब के रूप में काम करेगा। इस डेटा सेंटर के बनने से असम सहित पूरे नॉर्थ ईस्ट में ई गवर्नेंस को, आईटी सर्विस आधारित इंडस्ट्री को, स्टार्टअप्स को और बल मिलेगा। बीते सालों से नॉर्थ ईस्ट के युवाओं के लिए बीपीओ का जो इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है, उसको अब ताकत मिलेगी। यानी एक प्रकार से ये सेंटर डिजिटल इंडिया के विजन को नॉर्थ ईस्ट में भी मजबूत करेगा। भाइयों और बहनों, भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका ने लिखा था, कर्मई आमार धर्म, आमी नूतन जुगर नूतन मानव, आनिम नूतन स्वर्ग, अवहेलित जनतार बाबे, धरात प्रातिम स्वर्ग। यानी हमारे लिए काम ही हमारा धर्म है। हम नए युग के नए लोग हैं जिनकी सूद भी कभी नहीं ली गई। हम उनके लिए नया स्वर्ग बनाएंगे, धरती पर स्वर्ग बनाएंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की इसी भावना के साथ आज असम और नॉर्थ ईस्ट सहित पूरे देश में सरकार काम कर रही है। ब्रह्मपुत्र के इर्द गिर्द समृद्ध हुई असमिया संस्कृति, अध्यात्म, जनजातियों की समृद्ध परंपरा और बायोडायवर्सिटी, ये पूरे देश की बहुत बड़ी धरोहर है, हमारी गौरव गाथा है। श्रीमंत शंकर देव जी भी मजुली द्वीप इसी धरोहर को सशक्त करने के लिए आए थे। इसके बाद मजुली की पहचान आध्यात्म के केंद्र के रूप में, असम की संस्कृति की आत्मा के रूप में बनी। आप सभी ने क्षत्रिय संस्कृति को जिस प्रकार आगे बढ़ाया वो प्रशंसनीय है। मुखाशिल्प और रास उत्सव को लेकर जिस प्रकार देश और दुनिया में अब उत्साह बढ़ रहा है वो अद्भुत है। ये ताकत, ये आकर्षण सिर्फ आपके पास ही है। इसको बचाना भी है और आगे बढ़ाना भी है। भाइयों और बहनों, मैं सर्बानंद सोनोवाल जी और उनकी पूरी टीम को बधाई दूंगा कि मजुली के, असम के इस सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और प्राकृतिक सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए उन्होंने प्रशंसनीय काम किए हैं।
17 और दूसरे महत्वपूर्ण स्थानों को अवैध कब्जे से मुक्त करने का अभियान हो, कल्चरल यूनिवर्सिटी की स्थापना हो, मजूली को बायोडायवर्सिटी हेरिटेज सिटी साइट का दर्जा देना हो, तेजपुर मजूली शिवसागर हेरिटेज सर्किट हो, नमामि ब्रह्मपुत्र और नमामि बराक जैसे उत्सवों का आयोजन हो। ऐसे कदमों से असम की पहचान और समृद्ध हो रही है। साथियों, आज कनेक्टिविटी के जिन प्रोजेक्ट्स का प्रारंभ और शिलान्यास किया गया है, उनसे असम में टूरिज्म के लिए नए द्वार खुलने वाले हैं। क्रूज टूरिज्म के मामले में असम देश का एक बड़ा डेस्टिनेशन बन सकता है। नेमाती, विश्वनाथ घाट, गुवाहाटी और जोगीघापा में टूरिस्ट जेटी बनने से असम की टूरिज्म इंडस्ट्री को एक नया आयाम मिलेगा। जब क्रूज में घूमने के लिए देश और दुनिया का ज्यादा खर्च करने वाला टूरिस्ट पहुंचेगा तो असम के युवाओं की कमाई के साधन भी बढ़ेंगे। टूरिज्म तो ऐसा सेक्टर है जिसमें कम से कम पढ़ा लिखा, कम से कम निवेश करने वाला भी कमाता है और स्किल्ड प्रोफेशनल भी कमाता है। यही तो विकास है जो गरीब से गरीब को भी, सामान्य नागरिक को भी आगे बढ़ाने का अवसर देता है। विकास के इसी क्रम को हमें बनाए रखना है और गति भी देनी है। असम को, नॉर्थ ईस्ट को आत्मनिर्भर भारत का मजबूत स्तंभ बनाने के लिए हमें मिलकर के काम करना है। एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।